Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that topic is the file transfer protocol. File transfer protocol is one of the best protocol to uploading and downloading all the feature into the text format, and that is very helpful tutorial for all the students who pursuing BCA, BSc Computer Science, PGDCA, MTech, MCA, UGC NET preparation, JRF, any one of you have. And the things related with the FTP is very popular at every network site because that is the most effective protocol all over the world. In the file transfer protocol, that is the simplest and the most secure way to exchange files or information from all over the internet in the global village, and transferring files from the client computer to a server computer is called uploading, and when you will transfer the file from a server to a client is downloading. For example, when you send message from your phone to another phone, that on that time your phone is the particular server position and the another phone is on the client position. When the internet service provider send you any type of message, the internet service provider having the server machine and you are or you all are connected with the particular internet service provider are the client. So the on the internet when you will uploaded the files from your computer and downloading the files from your computer and from another location, on that time FTP will be definitely on work. And to access an FTP software via the modem or the internet and with the FTP client programs. So FTP actually does not really move to the copies from one computer to another. That is the entertainment of the application layer under the TCP/IP, that is the transmission control protocol, and the information control protocol having the application layer at on the last, because there are so many layers available in the TCP/IP, but normally जो लोग हैं जब वो applications use करते हैं तो उसको हर चीज एक application layer को already enhance करके देनी होती है, तो जो काम FTP वहां पे कर रहा होता है. FTP client का जो हमने अभी देखा, uploading and forwarding, that is the technical meaning of the uploading and forwarding. Moves file from one computer to another is the back and forth. Back and forth is the major technical word for the uploading and downloading files on over the network or over the internet. So it not needs to be installed on your computer, it's just into the live connections. The live connection is the FTP clients, that is the FileZilla, FireFTP, and the Dreamweaver. FileZilla popular FTP client under the simulated environment of the Windows operating system, Macintosh, and the Linux users, and the FireFTP with the FTP program with the Mozilla Firefox web browser services, and the Dreamweaver is for to designing the program over the internet, page layout over the internet, and the Adobe Photoshop all are having the features under the Dreamweaver FTP clients only, not the server. And the FTP client programs, some of which run from the command line interface. The command line interface is like that the FTP. जब आपके सामने कोई भी कमांड लाइन इंटरफेस आएगी तो इस तरह से आपको जो एंट्री मिलेगी उसकी तरफ से वो होगी आपकी, ऐसे लिखा हुआ आएगा FTP और आपको कॉलन आएगा. अगर आप लोगों ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रखा है तो ये बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा, बट अगर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा तो आपको इस क्लाइंट के बारे में इजीली समझ नहीं आएगी, क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा ही कमांड लाइन इंटरफेस है और इसका एक पार्ट क्लाइंट प्रोग्राम का कमांड लाइन इंटरफेस दिया जाता है. बट इन द लार्ज मेजोरिटी मैनिपुलेटेड फाइल्स में क्यूट FTP एक ग्राफिकल इंटरफेस है जो कि विंडोज के साथ मेरे अपने भी लैपटॉप में अवेलेबल है, जो चल रहा होता है. तो आपको कभी भी उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. हिस्ट्री ऑफ द FTP इज दैट कि जब FTP रिलीज हुआ था फर्स्ट टाइम 1971 में RFC 141 ट्रांसफर सिस्टम के अंडर बिटवीन द मैकिन्टॉश इंस्टीट्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया था आपका MIT मशीन्स के अंदर, जो बेसिकली बनाती थी मशीन्स रिलेटेड टू द नेटवर्क. एंड जो हमारा RFC की हम बात कर रहे हैं,
ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको कभी MCQ क्वेश्चंस में पूछा जाए तो आपको आंसर ये पता होना चाहिए कि RFC 141 रिलेटेड विद द FTP के साथ डेडिकेटेड सिस्टम है जो ट्रांसफर करती हो जब आप फाइल्स, तो तब यूज होता है। तो RFC का हम पर्टिकुलरली मीनिंग कोई गलत नहीं निकालते। RFC 141 इज द कमेंट प्रोटोकॉल है जो फाइल ट्रांसफर में बनाया गया था, जिसकी कोडिंग की गई थी मोस्ट प्रोबेबली अंडर द वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर। और जब RFC ने वर्किंग करनी स्टार्ट करी थी फॉर द फाइल ट्रांसफर, तो ऑटोमेटिकली हमारी कमेंटिंग में कोई इशू नहीं आता था, अपलोडिंग में डाउनलोडिंग में कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं आते थे, इस वजह से इसको बनाया गया था। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मेजर पार्ट है RFC 141 इज द नेम। RFC को फिर इम्प्रूव किया गया, कुछ चेंजेस की गई 1973 में दोबारा से, और उसके बाद उसको एज अ प्रोटोकॉल डिक्लेयर किया गया RFC 959 वर्जन के अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल के अंदर। जो ऑपरेटर्स इसके चलते हैं इन द क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट, वो आपके ज़्यादातर यूनिक्स की मशीन पे बने हुए हैं, और यूनिक्स की मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते टाइम FTP कभी भी चलाना है तो आपका सिंपल इंटरनेट का कनेक्शन यूज़ नहीं होगा, टेलनेट का कनेक्शन यूज़ होगा। जब आप टेलनेट का कनेक्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेना चाहोगे तो पहले आपके पास प्री रिक्वेस्ट कंडीशन होगी कि आपके पास उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। अगर है तो फिर वो आपको एक रिमोट लॉगिन कनेक्शन देंगे जो कि एक सिंपल इंटरनेट के कनेक्शन से काफ़ी कॉस्टली होता है और ऑन द कमर्शियल बेसिस के ऊपर आपको मिलेगा अगर आपको एक्चुअल उसकी सर्वर कंडीशंस चलानी है। अगर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फाइलज़िला अवेलेबल है, ड्रीमवीवर अवेलेबल है, क्यूट FTP अवेलेबल है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज द कमांड ओवर हियर FTPD। FTP इज द कमांड सेक्शन, एंड जो यूनिक्स में कमांड्स आज आप चलाओगे FTP में कोई भी, तो इस तरह से चलेगी। सो ये है हमारा प्रोसेस जब आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हो। तो यहाँ पे मैंने याहू का वेब होस्टिंग सर्वर ले रखा है। आपके फाइल से अगर कोई चीज़ अपलोड होती है तो डेफिनेटली सबसे पहले अगर डोमेन आप याहू यूज़ कर रहे हो तो याहू के थ्रू एंट्री उसकी होगी विद द इंटरनेट प्रोसीजर के ऊपर। जो हमने ईमेल का एक पार्ट पढ़ा था, आप उसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि जब ईमेल भी हम किसी को कॉन्फ़िगर करवाते हैं तो थ्रू आउट इंटरनेट से हो के जाती है, सेम एज विद द अपलोडिंग फीचर। कि इंटरनेट से जब क्रॉस हो जाएगी तो जिस कंप्यूटर पे डेस्टिनेशन पे उसने जाना होगा तो वहाँ पे वो एंट्री कर जाएगी इजीली। सो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग भी ऐसे होती है। मेन सोर्स टू डेस्टिनेशन आपका एंट्री जो है वो स्टार्टिंग भी हो जाती है, एंडिंग भी हो जाती है जब आप उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा फीचर यही है कि वन फाइल एट ए टाइम ये ट्रांसफर करता है इन अदर डायरेक्शन, आइदर ऑन द क्लाइंट मशीन और इट इज ऑन द सर्वर मशीन। एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है ज़्यादा से ज़्यादा ये मशीन सर्वर मशीन से आपको देता है। कनेक्शन जब आप उससे करोगे तो उसे कॉलिंग मशीन बोला जाएगा, और सर्वर मशीन जब आपके साथ कनेक्शन कर लेगी तो उसे ऑटोमेटिकली कॉल्ड मशीन बोला जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टेलनेट का कनेक्शन अगर कमर्शियल यूजेज में आएगा तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माइन क्लास, एनी बडी इफ इट इज़ द BCA क्लास BSc, तो आपका टीचर आपका एक ग्रुप बनाएगा जिसमें वो आपके सारे स्टूडेंट्स को एक ग्रुपिंग में ऐड करके एक लॉगिन और यूजर नेम प्रोवाइड विद द पासवर्ड करेगा। विद द पासवर्ड इंफॉर्मेशन से आप उनके साथ जुड़ोगे और एवरी टाइम आप किसी भी कंप्यूटर पर जब FTP चलाओगे तो उसका प्रोसेस जो होगा वो टीचर की तरफ से डिसाइड किया जाएगा एज पर द DBA रूल कि उन्होंने आपको क्या प्रिविलेज देने हैं। और अब जब ये प्रोटोकॉल वर्किंग करता है तो डायरेक्टरीज के साथ वर्किंग करता है कि आप कोई डायरेक्टरी क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, फाइल लिस्टिंग भी देख सकते हो, रीनेमिंग भी कर सकते हो अगर आपको सर्वर मशीन DBA अलाउ करती है तो ऑनरशिप और असेस रिस्ट्रिक्शंस की अभी हमने बात की है कि ऑनरशिप और असेस रिस्ट्रिक्शन सारी सर्वर के हाथ में होंगी, ये इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम से डिसाइड नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल है जब आप कोई भी डाउनलोडिंग फाइल, ऑडियो फाइल करते हो, कोई गेम खेलते हो जिसमें 3D वर्ड कोई ऐसा यूज़ हो रहा है या टेक्स्ट साथ साथ में आ रहा है, उस पर बहुत यूज़ होती है। अगर ऑप्शंस कोई हो रही है ऑनलाइन वेब पेजेस पे फाइल्स आप देखते ही रहते हो सर्वर के ऊपर, आप कोई वेब पेज बना रहे हो, कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, तो उसमें भी FTP ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करता रहता है। डिफरेंस क्या है, अब हम HTTP बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन ऑल ओवर द इंटरनेट। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एट एवरी वेबसाइट डील विद द hypertext transfer protocol because that particular
Protocol supports all the video, audio, 3D images, 4D images, any type of animated images, text, जो भी आप यूज करो, transfer one or more files वो करवाएगा. The major difference यही है कि FTP is the two-way system. Copy or move the files from a server to a client computer, uploading or downloading. But HTTP is strictly a one-way transferring texture file, क्योंकि जिसकी वेबसाइट है वही बस डिसाइड करेगा कि आपको देखनी है या नहीं देखनी. वन वे ट्रैफिक होती है उसमें, लेकिन FTP में जब आप क्लाइंट के साथ जुड़ते हो तो टू वे कनेक्शन आपको मिलता है, आइदर ऑन द वन वे कनेक्शन. FTP जनरली एनकोडिंग जो ट्रांसमिशन की करता है डाटा की, वो बाइनरी फॉर्म में करता है, जबकि जो हमारा HTTP है उसका मेजर वर्किंग एनकोडिंग का माइम फॉर्मेट में है. माइम फॉर्मेट जो है ईमेल के साथ भी बहुत ज़्यादा यूज होता है जब आपकी मल्टीपल एक्सटेंशन फाइल जो है मीडिया से रिलेटेड हो. माइम हमने जब एंट्री करी थी तो माइम ईमेल में प्रोटोकॉल की बात हुई थी कि माइम जो होता है वो मल्टीपल एक्सटेंशन फीचर्स को लेके चलता है कि मुझे अगर काम करना है तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसकी फुल फॉर्म होती है कि अगर आपको इस काइंड में कोई भी अस्काई डेटा फॉर्मेट देना है, अस्काई में एंट्री करनी है या बहुत बड़ा डेटा है जो आपको सेंड करना है, तो HTTP उसको सपोर्ट करता है. फाइल जो है बेसिकली कॉपी होती है या मूव होती है, ये हमने देख लिया है हार्ड ड्राइव से एंड वाइस वर्सा किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसी सॉलिड स्टेट से. एंड ऑन अदर हैंड जो हमारा HTTP है वो ट्रांसफर करता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाता है अनलेस द कंप्यूटर मेमोरी में अगर आपने मूव कर ली है वो वेबसाइट बुकमार्क में एंट्री कर ली है तो दिखेगी, नहीं की है हिस्ट्री में नहीं स्टोर तो आपको वो दोबारा सर्च करनी पड़ेगी, लेकिन वो दोबारा नहीं. और इसके एक्चुअल मॉडल में जो प्रोटोकॉल फॉल है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंडर होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप कोई भी चीज़ ले रहे हो तो वो आपकी एंट्री उसी में ही करवाएगा. क्योंकि ये देखो सर्वर और क्लाइंट का रिलेशन भी इसमें दिखेगा, क्योंकि चैनल्स होते हैं दो तरह के, कंट्रोल चैनल और डेटा चैनल. अगर आप कंट्रोल चैनल में जुड़े हो तो डेफिनेटली आप कमांड इंटरफेस पे होगे, अगर आप डेटा चैनल पे जुड़े हो तो डेफिनेटली उसका जो इंटरमीडिएटेड एरिया होगा वो आपका वर्क स्टेशन सर्वर के साथ होगा. और सर्वर और क्लाइंट की मशीन, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई भी चीज़ देता है तो उसका मॉडल जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है. तो जब भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने कोई भी आपका प्रोसेस जो है चेंज करना है तो सबको एक मैसेज जाएगा, ये नहीं है कि किसी सिंगल को जाएगा. इसीलिए पोर्ट नंबर अलग अलग होते हैं कमांड के और डेटा के. डेटा जब रिवील होना है तो अलग पोर्ट से जाएगा और जब आपका एंट्री होगी कमांड की तो अलग से. कंट्रोल चैनल जो है वो कंट्रोल चैनल कमांड को ही बोला जाता है, तो वो होता है पोर्ट नंबर 21 और डेटा चैनल रेकमेंड करता है हमें पोर्ट नंबर 20. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क जिससे हम डेटा जो है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में एंट्री करवाते हैं. देखो क्लाइंट का एनवायरनमेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हो सकता है. अगर आप सिमुलेटेड एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलजिला को ऑपरेट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली प्रूव हो रहा है कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. यूनिक्स या लाइनिक्स है उसका भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अगर शेल आपका एक्टिव मोड में है तो फिर वो भी एंट्री कर सकता है. तो इसमें यूजर का फाइल सिस्टम एरिया हो सकता है जीजोई में, लेकिन सर्वर का अपना एक कनेक्शन जो होगा, अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स से ही है तो आपको जब वो देगा तो उसकी कंपैटिबिलिटी देगा साथ में, ताकि आपके पार्ट पे वो पार्ट प्ले इजीली हो जाए. बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि जो चैलेंजेस हैं या परमिशंस हैं या असेस राइट्स हैं या कंडीशंस हैं वो हमेशा सर्वर मोड का पर्सन ही लगा सकता है, दूसरा क्लाइंट नहीं लगा सकता. सो FTP मॉडल में हमने देखा है कि डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोसेस में जब डेटा DTP चलेगी तो डेटा के साथ चलेगी, लेकिन PI प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर जब चलेगा तो वो कमांड्स को कंट्रोल करेगा विद द क्लाइंट एंड द सर्वर मशीन. सर्वर PI इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये है कि जितनी भी कमांड्स उसके पास आ रही हैं, अगर कनेक्शन सर्वर ने उसे दिया है, यूजर लॉगिन उसके पास है क्लाइंट के पास, उसने यूजर लॉगिन में आपके पास लॉगिन कर लिया यूजर नेम पासवर्ड देके, तो FTP की कमांड्स जितनी भी चलानी है वो डिसाइडेबल मोड में सर्वर प्रोग्राम इंटरप्रेटर आपको बताएगा कि आपने कौन कौन सी चलानी है और कितनी देर आपका कनेक्शन जो है वो उसके साथ एस्टेब्लिश रहेगा. क्योंकि कनेक्शन जब भी एस्टैब्लिश होना है तो विद द प्रोटोकॉल टेलनेट के प्रोटोकॉल के साथ होना है, जो मैंने इससे पहले भी आपसे बात की है कि इसके लिए कनेक्शन हमें
टेलनेट का चाहिए होता है और टेलनेट प्रोटोकॉल आपके सामने अब आ गया है। द क्लाइंट जब सेंड करेगा एफटीपी को कोई भी कमांड सर्वर के ऊपर, तो सर्वर इंटरप्रेट करेगा उसे एज अ डीटीपी कि स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स उसे देना है कि नहीं देना। अगर देना है तो किस पोर्ट नंबर से देना है। अभी हमने देखा था कि अगर उसका कनेक्शन कमांड पोर्ट से हुआ था तो पोर्ट नंबर 21 से उसे आउटपुट आएगी। अगर डेटा पोर्ट से किया होगा तो फिर आपकी 20 से आएगी। जो क्लाइंट डीटीपी लिसन करेगा उसका पोर्ट कमिंग इनकमिंग और आउटगोइंग विद द डेटा पोर्ट नंबर 20, और इफ इट इज द कमांड इंटरफेस तो उसकी पोर्ट नंबर होती है 21। ये है एफटीपी का क्लाइंट एंड सर्वर का कनेक्शन कि अगर डेटा कनेक्शन होगा तो ये अलग पोर्ट से होगा, क्योंकि दो पोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं हम। ये कंट्रोल कनेक्शन की है पोर्ट नंबर 21, और जो ऊपर आपको दिख रही है दैट इज द पोर्ट नंबर 20। डिफरेंट पार्ट से होता है। आप ले रहे हो डाटा, आपको उस कनेक्शन जो करवा रहा है सर्वर वो आपको पोर्ट नंबर डिफरेंट से देगा, बट जब आप उसे ट्रांसफर करोगे कोई काम करके तो वो पोर्ट नंबर 21 से जाएगा, लेकिन जाएगा सर्वर की मशीन के ऊपर ही। एफटीपी मॉडल का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपने पढ़ लिया है कि जब वो एज अ सर्विस यूज करता है तो आपको कंट्रोल चैनल के साथ जोड़ता भी है, सर्वर के साथ जोड़ता भी है, और ट्रांसफर करता है विद इन द conditions of the particular server, transferring information between the two server processes। ये है हमारा अब क्लाइंट सर्वर का रिलेशन कि जब फाइल सिस्टम डेटा चैनल की चलेगी तो सर्वर टू सर्वर, अगर दो सर्वर्स भी हैं तो ऑटोमेटिकली वेब सर्वर के ऊपर अगर आप ग्लोबल विलेज का पार्ट हो तो मल्टीपल सर्वर्स इंटरनेट पे रिलाई कर रहे होते हैं। तो जितनी बार भी आपको चीज़ मिलेगी तो वो आपके क्लाइंट के इन्वायरमेंट में होगा कि जिस तरह से है। अगर वो डाउनलोडिंग सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप उसको कर पाओगे, लेकिन अगर वो आपको एरर दे रहा है कि आपको इसके लिए एक एड ऑन फाइल भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और अगर कंपैटिबिलिटी उसकी है तो एड ऑन फाइल आपकी हो जाएगी और आपके सामने कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, बट विदाउट टेलनेट कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा। सो ये टाइप्स ऑफ कनेक्शन है अभी हमने देखे हैं कि 421 से कनेक्शन स्टार्ट होता है। जब भी सर्वर मशीन के साथ आप ओपन करते हो कनेक्शन, दो तरह के कनेक्शन है, एक्टिव और पैसिव, क्योंकि दो तरह के क्लाइंट्स अवेलेबल है। एक्टिव कनेक्शन जो होता है हमारा जब पोर्ट नंबर 21 से होकर डेटा कनेक्शन में जाता है तो पोर्ट नंबर 20 ऑटोमेटिकली उसे वेरीफाई करती है कि ये हमारा जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है ये वेरीफाइड है या नहीं। उसमें आपका यूजर नेम, अथेंटिकेशन लेवल की नेटवर्क सिक्योरिटी आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी और आपका डेटा कहीं रिवील नहीं किया जाएगा। और पैसिव कनेक्शन में आप कहीं से भी जब डेटा उठा लेते हो तो आपसे कोई ईमेल आईडी मांग लेता है, आप दे देते हो। तो हाई नंबर ऑफ पोर्ट हमारे पैसिव कनेक्शंस में चलते हैं, जिसमें एफटीपी क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब आप कोई भी रिजल्टेंट वैल्यू इंटरनेट से उठाते हो तो आप खुद भी इसी पार्ट पे डील कर रहे होते हो जो पैसिव कनेक्शन। सो एक्टिव कनेक्शन की पोर्ट नंबर हमेशा ही 20 to 21 दोनों चलेगी, जबकि पैसिव कनेक्शन की जो हाई पोर्ट नंबर होती है सिर्फ वन टाइम डील करती है 21 का। वेरीफाई कनेक्शन है नहीं है, उसने आपका डेटा ले लिया है, आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे देख ही नहीं पा रहा, कर ही नहीं पा रहा, कोई सर्विस आपको दे ही नहीं पा रहा, तो वो पैसिव कनेक्शन में ज़्यादातर हमारे यूजर्स वर्क करते हैं। सो एफटीपी की जो कमांड्स होती हैं वो तीन तरह की कमांड्स हैं, असेस कंट्रोल कमांड्स, ट्रांसफर पैरामीटर कमांड्स एंड द एफटीपी सर्विस कमांड्स। असेस कंट्रोल कमांड सारी सर्वर पोजीशन पे होती हैं जिसमें उसने आपको प्रिविलेज देना है कि आप कितना डेटा यूज कर सकते हो कितना नहीं। ट्रांसफरिंग कमांड्स वो होती हैं जब आपको वो बताए कि स्काई फॉर्मेट में डेटा देना है, बाइनरी फॉर्मेट में देना है या किस में देना है। जो सर्विस कमांड है कि आप कोई काम कर रहे हो, क्लाइंट का सर्वर के साथ कोई कनेक्शन है, काम कर रहे हो, तो उसमें डील करेंगी। तो असेस कंट्रोल की कमांड्स में सबसे पहली कमांड है पास। पास कमांड यूज होती है पासवर्ड के लिए, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल आपको आपके टीचर ने ग्रुपिंग में डाला और उन्होंने दो दो रोल नंबर्स को एक कंप्यूटर इशू किया विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड, और पासवर्ड होगा दोनों बच्चों में से किसी का भी रोल नंबर। एंड व्हेन यू विल एंटर इनटू द एनी पर्टिकुलर लेबोरेटरी ऑफ द कंप्यूटर साइंस, तो उसमें जैसे ही आप किसी कंप्यूटर पे बैठोगे तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर आप आज नंबर 1 पे बैठे थे तो आपको हमेशा नंबर 1 पे बैठना पड़ेगा। नो, आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ सकते हो, क्योंकि अब आपके पास एक अथेंटिकेटेड यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। आप कहीं पे भी चलाओगे तो आपका कनेक्शन तो सर्वर के साथ है। तो अब अगर मैंने बात की है कि आपको अगर
सर्वर मशीन वाला पासवर्ड लगा के देता है विद द 2 गर्ल्स रोल नंबर, या आपके 2 बॉयज वर्क कर रहे हैं तो उनका रोल नंबर, तो सबको वो रोल नंबर ऑलरेडी आपकी क्लास में पता होगा। तो उस टाइम के ऊपर आप ऑटोमेटिकली सबसे पहली जो कमांड चलेगी वहां पे वो डेटा चैनल खुद चलवाएगा पासवर्ड कमांड, आपके कनेक्शन एस्टेब्लिश करते टाइम ही, जैसे ही सेशन ऑन होगा आपके सामने ऑटोमेटिकली चलेगी, जिसमें वो आपसे वो पासवर्ड पूछेगा जिस पासवर्ड से आप उसमें एंटर हुए थे। अब अगर 2 गर्ल्स हैं तो उनमें से उन्होंने जो पासवर्ड लगाया होगा वो पासवर्ड लगाएंगी और फिर वो नया पासवर्ड आपको इशू करेगा जो आप उस टाइम पे लगाओगे। दैट इज फॉर द सिक्योरिटी रीजन कि आपकी पूरी क्लास को जो आपका पासवर्ड पता है अब वो सिर्फ उन 2 बच्चों को पता हो, बाकियों को ना पता हो। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर स्ट्रिंग कमांड। जब यूजर का अकाउंट बनाना होता है, रिस्पॉन्स देना होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये कमांड चलती है। अकाउंट लिखने में आती है ACCT एंड अकाउंट बोलने में आती है CWD कमांड इज फॉर द चेंज वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे आप एक डायरेक्टरी में वर्किंग कर रहे हो दूसरी में जाना है तो कमांड यूज होती है चेंज वर्किंग। ये जो हमारी कमांड है CDUP, दैट इज द चेंज टू द पेरेंट डायरेक्टरी, क्योंकि लेवल्स में काम होता है। अब आप किसी टीचर के साथ जुड़े हो तभी लेवल्स में काम होना है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन पावर के साथ जुड़े हो तभी लेवल्स में काम होना है। तो ये पेरेंट डायरेक्टरी अगर चेंज करनी हो तो उसमें एंट्री आप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर माउंट करनी है, कि अगर स्ट्रक्चर को भी बतानी है उन्हें कि आप किस लेवल पे वर्किंग कर रहे हो, या फिर रीइनिशियलाइजेशन देनी है कि कुछ चेंजेस कर रहे हो, कोई ग्रुप बच्चा चेंज कर रहा है, उसकी टीम चेंज करनी है। MNC में हो तो टीम चेंज हो सकती है, और जब आपने कनेक्शन से बाहर आना है तो क्विट कमांड आपको क्लोजिंग के टाइम पे चलानी पड़ेगी। ट्रांसफर पैरामीटर कमांड्स होती है पोर्ट, कि कौन कौन से पोर्ट नंबर से आप एंटर हुए हो। पैसिव कमांड होती है कि अगर DTP कनेक्शन आपका पैसिव से हुआ था तो कौन सी स्पेशल पोर्ट नंबर एंटर हुई थी, कि उसमें कौन सा IP एड्रेस आया था जिसने उस पर्टिकुलर पार्ट की सिक्योरिटी को भी हिट किया है। टाइप में आएगा कि किस टाइप की फॉर्मेट कमांड है, आपका डेटा जो रिवील होना है वो स्काई में कर रहे हो कि बाइनरी में कर रहे हो या किसी और पार्ट में। जो आपकी स्ट्रिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि आप फाइल भेज रहे हो, कोई रिकॉर्ड भेज रहे हो, कोई पेज भेज रहे हो, आपको वो दिखाना पड़ेगा कि F यूज करना है अगर आप फाइल भेज रहे हो। पेज भेज रहे हो तो P यूज करो, अगर आप रिकॉर्ड भेज रहे हो पूरा तो R यूज करो। ये ट्रांसफरिंग मेटा आपकी कमांड चलती है, बैकएंड पे भी चलती है, बट जो सर्विस फ्रंट एंड पे यूज कर रहे हैं उनके साथ भी चलती है, स्पेशली विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई यूज कर रहा है तो डेफिनेटली ये यूज करता है। मोड कमांड होती है कि जब आपका कनेक्शन रिमोट लॉगिन के साथ टेलनेट के ऊपर था तो आपको स्ट्रीम लाइन बतानी है कि एज फॉर द स्ट्रीम ठीक चल रही है। B फॉर द ब्लॉक, अगर किसी को ब्लॉक करना है उस एड्रेस में से कोई IP एड्रेस ऐसा हिट हो रहा है कि ग्लिच दे रहा है कोई तो उसे ब्लॉक करो। C फॉर द कंप्रेस्ड फिगर। एंड द FTP सर्विस कमांड होती है टू रिट्रीव द डेटा। रिट्रीव कोई करना है डेटा, आपका पैरामीटर सेट करेगा DTP, क्योंकि डेटा ने ही, डेटा पोर्ट ने ही आपको बताना है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। स्टोर है कि अगर आपको सर्वर कहता है कि आप क्लाइंट जो काम कर रहा है वो स्टोर कर दे तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही सेव करेगा तो वो पुराने काम के साथ अगर पिछले दिन भी किया होगा तो अगर वो सेम नेम से करेगा तो वो आपको कहेगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर करेगा तो ये भी कह सकता है फाइल अवेलेबल है तो एग्जिस्ट, तो इसको रिप्लेस करना है तो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको कमांड देता है और DTP भी देगा। STOU कमांड हम यूज करते हैं जब आइडेंटिकली हमने ये देखना हो कि सर्वर का जो कंडीशन क्रिएशन फाइल में गया था वो यूनिक रिस्पॉन्स पे है या किसी के साथ शेयर्ड रिस्पॉन्स पे है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अपेंड का। अगर कोई भी काम हमारा चल रहा है उसको हमने रोकना है तो आप अपेंड कमांड यूज करोगे। एलोकेट करनी है तो कमांड, कोई भी काम एलोकेट करना है जब सर्वर ने आपको तो वो ALLO एलोकेट कमांड यूज करेगा। कुछ भी रीस्टार्ट करनी है यूजर की सर्विसेज, क्लाइंट ने अब एक काम आपने उसको प्रोजेक्ट में दिया था उसने कर लिया है, न्यू प्रोजेक्ट रेफर करना है तो आपको ट्रांसफर कमांड की रीसेटिंग भी करनी होगी जो कि सर्वर करेगा। रीनेमिंग करनी है फाइल की तो आपको RNFR कमांड चलानी पड़ेगी फॉर अनेबलिंग द इमीडिएटली कमांड रीनेमिंग। RN2 करनी है। RN2 होती है हमारी पैरामीटर अगर लगे हुए हो कि रीड की है कमांड, रीड राइट की है कमांड, किस तरह की है उसके ऊपर चलते हैं। आगे है अबॉर्ट करनी है कोई भी कमांड, कोई सर्विसेज अभी आप दे रहे हो चैनल पे तो उसको आप वापस लेना चाहते हो, नहीं उस सर्वर को अब हमने देनी तो उसे आप अबॉर्ट में कमांड को डाल के अबॉर्ट कर सकते हो। डिलीट कमांड होती है कि जब आपने कुछ भी डिलीट करना है तो आपको डिलीट कमांड जब लिखनी है तो DELE करके लिखनी पड़ती है।
RMD होती है जब हम डायरेक्टरी बनाते हैं. डायरेक्टरी और फाइल्स आर डिफरेंट, लाइक फाइल्स एंड फोल्डर्स. फोल्डर का नेम होता है, कंटेंट उसके अंदर होता है एज अ फाइल, और सेम एज विद द RMD. MKD डायरेक्टरी को बनाने के लिए होती है, RMD डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए. PWD ये देखने के लिए होती है कि आप किस लेवल पे इस टाइम पे वर्क कर रहे हो, सर्वर के किस लेवल के ऊपर. लिस्ट में पूरी लिस्ट दिखाएगा, जैसे ओपन आप कोई भी चीज करते हो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो आपको पूरी लिस्ट दिखाता है, उसका पार्ट है. ये है नेम ऑफ लिस्ट का कमांड, कि अगर नेम देखने हैं सिर्फ तो NLST, अगर पूरी लिस्ट के कंटेंट देखने हैं कि किस दिन बनी थी, क्या नाम है, किस मतलब कितनी साइज की है, वो LST से पता चलती है. साइट कमांड होती है जो FTP के प्रोटोकॉल के साथ वर्किंग करती है. सिस्ट कमांड होती है जो इंफॉर्मेशन रिमोट सर्वर से आपको देती है. स्टार्ट कमांड होती है जो स्टेटस बताती है कि आपका डेटा जो है वो सर्वर पे ट्रांसफर होना है या नहीं होना, या किस पाथ से आपका डेटा होके एंट्री करेगा. हेल्प कमांड होती है कि कंट्रोल चैनल पे अगर कोई स्टूडेंट आपका हेल्प मांग रहा है उसको हेल्प दे सकते हो, या आपका जो नो ऑपरेशन है कि अब कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है इन फ्यूचर, तो आप नो ऑपरेशन कमांड चला दोगे तो डेफिनेटली वो नो एक्टिविटी में आ जाएगा. सो रिस्पॉन्स की बात करते हैं. अभी हम रिस्पॉन्स हमने किया था सर्वर की तरफ से, तो इनकोडिंग मेथड जब चलता है तो 3 डिजिट कोड होते हैं विद द टेलनेट करेक्टर. जो आप टेलनेट पे हो तो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग में आएगा with the numeric code of the 3 digit code and the response number होगा 3. सक्सेस फेल हो रहा है तो वो भी आपको बताएगा. सेकंड नंबर बताएगा रेफरेंस, थर्ड नंबर बताएगा मीनिंग. 3 नंबर्स में से ध्यान से सुन लो. फर्स्ट नंबर इंडिकेट करेगा स्टेट ऑफ द रिस्पॉन्स, सेकंड नंबर इंडिकेट करेगा व्हाट द रिस्पॉन्स रेफर्स टू, एंड द थर्ड नंबर इंडिकेट करेगा व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेकंड डिजिट. सो 1YZ प्रिलिमिनरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. अगर कोई एरर आती है तो द एक्शन रिक्वेस्टेड इज इन द प्रोग्रेस. अगर आप उसका क्लाइंट यूज कर रहे हो तो एरर 1YZ आई है मीन्स आपका रिस्पॉन्स रिक्वेस्टेड में है. सेकेंड रिस्पॉन्स है बिफोर सेंडिंग अ सेकेंड कमांड आपको वेट करनी पड़ेगी. 2YZ है कि एक्शन रिक्वेस्टेड में चला गया है और अब न्यू कमांड आप सेंड कर सकते हो. 3YZ है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भेजनी है क्लाइंट को, तो वो भी आप इसके थ्रू भेज सकते हो. 4YZ भी हम यूज करते हैं और 5YZ भी क्लाइंट के साथ नंबरिंग में यूज होता है 3 डिजिट कोड में. 4YZ होता है नेगेटिव फुलफिलमेंट के लिए, कि आपका कोई नेट नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो नेगेटिव फुलफिलमेंट आएगी. 5YZ होती है परमानेंट नेगेटिव रिस्पॉन्स, कि आप ब्लॉक कर दिए गए हो, अब आपको कोई कमांड नहीं मिल सकती. अगर हेक्साडेसिमल में यूज हो रही है तो X0Z सिंटेक्स सर्वर भी आ सकता है. एरर 1Z आ रहा है तो स्टार्ट कमांड के लिए भी आ सकता है. X2Z आ रहा है तो डाटा चैनल के लिए भी आ सकता है. X3Z आ रहा है तो पास और आपका यूजर पासवर्ड जो आप यूज कर रहे हो उसमें कोई चेंजेस अलाउ करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा. X4Z है तो FTP के प्रोटोकॉल में वर्किंग आ जाएगी. 5Z है तो उसके रिमोट फाइल सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी हेक्साडेसिमल की, क्योंकि टेलनेट का कनेक्शन जब यूनिक्स के साथ है तो यूनिक्स इज रिलेटेड विद असेंबली लैंग्वेज, एंड असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग जो होती है वो 100% आपकी निमोनिक कोड, जिसको भी असेंबली लैंग्वेज की नॉलेज होगी वो डील करेगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. रेस्ट ऑफ द टीचर्स हो, क्लाइंट्स हो, सर्वर हो, स्टूडेंट्स हो, वट एवर, वो डील नहीं कर सकते. सो ये कमांड है जब आप सर्वर नेम के साथ जोड़ते हो विंडोज में या लाइनक्स में, सेशन में, फिलाजिला के साथ कुछ भी, या यूनिक्स में. यूनिक्स सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इस मामले में. विंडोज में तो आपको सिमुलेटेड एनवायरनमेंट मिलेगा. सर्वर नेम रिप्रेजेंट होता है आईपी एड्रेस से, और आपका कनेक्शन जैसे ही एंटर होगा तो आपका आईपी एड्रेस वहीं पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा. अब 220 प्रोसीडिंग नंबर आएगा जो कि हमारा वेलकम मैसेज के लिए आता है, कि आप पोर्ट नंबर से जब जुड़े हो तो 220 नंबर पास ऑन करेगा. एक्सेप्ट हो गई है, मार्क हो गई है, मीनिंग हो गई है, तो फिर आपको इनवाइट आएगा 331 से कि आप अपना पासवर्ड नंबर एंटर कर सकते हो अगर आप यूनिक्स के एनवायरनमेंट में हो. फिर पब्लिकली डीलिंग कर रहे हो किसी वेबसाइट के साथ तो तब भी एड्रेस और पासवर्ड वो मांग सकता है, और नो मोर यूजर अलाउड में भी मांग सकता है. सो जब आप एंटर हो जाओगे तो उसके बाद वो कमांड चलनी शुरू होगी जो अब हमने पढ़ी है. तो मोर कमांड्स में हेल्प, स्टेटस, बाइनरी, स्काई फॉर्मेट, ये वाली कमांड्स हमने अभी पढ़ी हैं, वही सारी आती हैं और कोई डिफरेंट कमांड्स नहीं होती. सो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक प्रोटोकॉल का, सर्विस का, रिलेटेड विद द एफटीपी. अगर किसी स्टूडेंट ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलाई होगी तो डेफिनेटली कमांड समझ आ जाएंगी, और अगर नहीं भी चलाई होगी तो डेफिनेटली आप बता दीजिएगा
आपको डेफिनेटली एक और वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा रिलेटेड विद DOS. Hope so that particular information will definitely very helpful to all of you, and if you have any type of question, kindly comment into the comment box or in the channel. Without any hesitation, you will ask any type of question. The response time of the question is the 24 hours. Within the 24 hours, definitely reply will be given to you. So till then, take care. Thank you and God bless you.